Welcome everyone to your English class. Today we are going to continue our next chapter, The Thief Story, which is taken from Footprints Without Feet. This chapter is written by the Indian author Ruskin Bond. This is the story of a young boy whose name was Hari Singh. Actually, he is only 15 years old, but he is a thief. The thief himself tells this story. ये अपनी ही स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन करता है. And the thief himself says that he was only 15, but he was a successful hand. Successful hand in what? Successful hand in stealing things, चोरी करने में. Okay, now let's continue the chapter, The Thief's Story. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Actually, as I described you earlier, that the thief himself is describing the story. Okay, so look at here. I was still a thief when I met Anil. I here stands for the thief Hari Singh. Hari Singh, he is telling that I was still a thief when I met Anil first. सबसे पहले किससे मिला? अनिल से. A young boy, this young boy Hari Singh makes friends with Anil. किसके साथ फ्रेंडशिप करता है ये? अनिल के साथ. And Anil trust him completely. Anil, who was a very kind-hearted person, okay, he was a very simple fellow who trust him completely. उसको ट्रस्ट करता है and employs him, और उसको काम पर ऑफर करता है. Okay, now you will find here in this story, does the boy betray his trust? चीट करता है क्या उसके ट्रस्ट को और नॉट? Okay, now look at here. I was still a thief when I met Anil. When Hari Singh meets Anil, at the time he is a thief, and though only 15, he was, as I described you earlier, that he was only 15 years old. I was an experienced and fairly successful hand. Fairly successful hand at what? At stealing things. Anil was watching a wrestling match. Anil क्या कर रहा था? What he was doing? He was watching a wrestling match when I approached him. Approached means coming near. जब मैं उसके पास गया, what Anil was doing? Anil was watching a wrestling match. He was about 25. Hari Singh, who was of 15 years old, and Anil was 25 years old. A tall, lean fellow. Lean means very weak. And he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. And how he was looking? How Anil was looking there? Anil was looking easygoing. He was a very simple person. He was very kind-hearted person. And Hari Singh, who wanted to rob him, who wanted to steal things of Anil, जो उसके घर चोरी करना चाहता था, so he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. Purpose क्या था यहाँ पर हरी सिंह का? हरी सिंह's purpose was to rob Anil. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man confidence. क्योंकि छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा पर्सन लग रहा था, तो कुछ समय से क्योंकि भाग्य ने जो फेट था वो भी उसने भी उसका साथ नहीं दिया था. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग्स मैन कॉन्फिडेंस. और इस बार उसने क्या सोचा हरी सिंह ने? दैट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं इस यंग मैन अनिल का अच्छे से कॉन्फिडेंस गेन कर पाऊंगा. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. अब क्योंकि उसको अट्रैक्ट करना है अपनी बातों से, तो फर्स्ट क्या उसको अट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है? यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, कि तुम किसकी तरह लग रहे हो? एक रेसलर की तरह. बिकॉज अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, तो उसको किससे कंपेयर कर रहा है? रेसलर से. वाई ही वॉज डूइंग दिस? वाई ही वॉज सेइंग दैट यू आर लुकिंग लाइक अ बिट ऑफ रेसलर? A little flattery helps in making friends. क्योंकि थोड़ी सी फ्लैटरी करने से, थोड़ी सी प्रेज करने से क्या होता है? मीन्स फॉल्स प्रेज कह सकते हैं आप. झूठी प्रेज करने से क्या होता है? अच्छे से इजीली कन्विंस हो जाते हैं और सामने वाले पर्सन को फ्रेंड बनाया जा सकता है. सो डू यू? ही रिप्लाइड. तो उसने कहा तुम भी ऐसे ही लगते हो. उसने रिप्लाई किया. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. एक के लिए तो मैं क्या हो गया? विच पुट मी ऑफ मीन्स आई वॉज विदाउट आंसर, क्योंकि मेरे पास अब कोई आंसर नहीं था. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस टाइम मैं कैसा लग रहा था? बिल्कुल पतला सा, वीक सा पर्सन लग रहा था. सो और उसने मुझे क्या बताया? दैट यू आर ऑल्सो लुकिंग लाइक अ रेसलर. वेल, आई सेड मोडेस्टली.
आई डू रेसल अ बिट, और मैंने क्या बताया उसको मोडेस्टली, मोडेस्टली मीन्स हम्बली, बिल्कुल पोलाइटली मैंने उसको आंसर दिया और क्या बताया, आई डू रेसल अ बिट, मैं भी थोड़ी सी रेसलिंग कर लेता हूँ. नाउ Anil asked my name, and what he asked, what's your name? Now look at here, he replied, हरी सिंह, आई लाइड. हरी सिंह उसने अपना आंसर दिया और क्या बोला, आई लाइड. लाइड मीन्स ही इज टेलिंग अ लाई, उसने झूठ बोला और क्या कहा, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, और अपने बारे में एक्सप्लेन करते हुए बता रहा है दैट आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. क्यों लेता है हर बार नया नेम, दैट केप्ट मी हेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि जो मुझे पुलिस है उनसे भी दूर रखती है और जो मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं जिनके यहाँ मैं पहले भी चीटिंग करके आया हूँ, स्टीलिंग करके आया हूँ, तो उनसे भी मुझे दूर रखता है ये. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन मीन्स आफ्टर टेलिंग द फॉल्स नेम, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स. वेल ऑयल्ड होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी कैसी होती है, अच्छे से ऑयलिंग किया हुआ होता है उनकी बॉडी पर. अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. जो क्या करते हैं, रेसलिंग मैच आपने कभी देखा होगा तो रोर करते हैं जोर से, ग्रंटिंग मीन्स रोरिंग, जोर जोर से चिल्लाते हैं, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. आई डिडेंट हैव मच टू से, और मेरे पास उसके बारे में अब ज़्यादा कुछ बात कहने के लिए नहीं था. अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चल दिया. एंड आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी वैसे ही उसके पीछे चला गया. हेलो अगेन ही सेड, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. अब मैंने उसको मतलब जितनी अट्रैक्टिव स्माइल उसको मैं दे सकता था, आई गेव हिम माई मोस्ट अट्रैक्टिंग स्माइल. एंड आई सेड आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू बट आई कांट पे यू. और तो अनिल ने क्या बोला, पहले तो मैंने बोला उसे, हरी सिंह ने कहा दैट आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, बट अनिल रिप्लाइड एट द सेम टाइम एंड ही सेड दैट ही कांट पे हिम, कि वो उसको पे नहीं कर सकता, बिकॉज ही वॉज ए वेरी सिंपल, काइंड हार्टेड, एंड बिकॉज ही वॉज नॉट, ही हैड नॉट इनफ मनी टू पे हिम, सो ही रिप्लाइड दैट. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. आई हेयर स्टैंड्स फॉर अनिल. अनिल एक बार तो सोचता रहा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. मिसजज्ड मीन्स गलत तरीके से जज कर लेना, कि मैंने, बिकॉज अर्लियर ही वॉज थिंकिंग दैट अनिल वॉज क्वाइट इनफ, मीन्स ही वॉज सुटेबल फॉर हिज पर्पस, कि उसके सिंपल इनफ है और सुटेबल भी है उसके पर्पस को कंप्लीट करने के लिए. एंड नाउ ही इज सेइंग दैट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि मैंने अपने मैन को, जो मेरा पर्पस कंप्लीट करना था उसके लिए शायद मैंने इस मैन को मिसजज कर लिया. आई आस्क्ड, और क्या पूछा, कैन यू फीड मी, मीन्स क्या मुझे आप खाना खिला सकते हो, इतना अफोर्ड कर सकते हो. नाउ अनिल आस्क्ड, अनिल ने क्या पूछा, कैन यू कुक, कि क्या तुम कुक कर सकते हो. येस आई लाइड अगेन, फिर दोबारा से झूठ बोला. पहला झूठ क्या बोला था, अबाउट द नेम हरी सिंह, एंड द सेकेंड लाई ही वॉज टेलिंग दैट आई कैन कुक. If you can cook, then maybe I can feed you. उसने कहा okay, if you can cook, then maybe I can feed you. Now he took me to his room over the Jamna sweet shop. Jamna sweet shop के ऊपर उसका वहाँ घर था और उसी घर पर वहाँ उसको लेकर गया. And told me I could sleep on the balcony. और उसने मुझे क्या बताया अनिल ने, that I could sleep on the balcony. क्या balcony में उस साइड सो सकते हैं. But the meal I cooked that night must have been terrible. पर जो खाना मैंने वहाँ पर बनाया, मीन्स एट दैट नाइट द मील आई कुकड, जो खाना हरी सिंह ने उस रात को बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल. वो कैसा था, बिल्कुल टेरिबल खाना था, मीन्स इट वॉज ऑफ डिसटेस्ट. अनिल, बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग. जो गली में इधर उधर आवारा वेंडरिंग कर रहे होते हैं डॉग्स, उन डॉग्स को अनिल ने क्या किया, वो डॉग्स को खाना डाल दिया. ओके, बिकॉज द फूड वॉज नॉट suitable to eat, so Anil gave it to a stray dog and told me to be off. और उसने मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, told me to be off, but I just hung around, but I still stayed there, smiling in my most appealing way. अभी भी जितनी attractive smile है, because he was Hari Singh was of 15 years old boy, so he started smiling in his most appealing way. He couldn't help laughing, but Anil, who was very serious, और वो अभी भी क्या कर रहा है, उसने अभी भी हंसी, मतलब उसकी he couldn't help laughing, उसकी हंसी नहीं आई. Later he patted me on the head. उसने सबसे पहले क्या किया, मेरे हेड पर मुझको पैट किया. And said, okay, never mind.
ही वुड टीच मी टू कुक, और वो उसने मुझे बताया अनिल ने दैट ही वुड टीच मी टू कुक, कि वो हरी सिंह को कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टोट मी, और क्या क्या सिखा रहा है वो साथ में, ही बिकॉज हरी सिंह हु वॉज अ वेरी सिंपल काइंड हार्टेड फेलो, सो ही स्टार्टेड टीचिंग हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह को टीच करना स्टार्ट किया टू राइट माई नेम and said he would soon teach me to write whole sentences. First, Anil taught him how to write the name, and then he said he would soon teach him to write whole sentences to add numbers. I was very grateful. Hari Singh felt very obliged. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. I knew, I means Hari Singh. Hari Singh was well aware that once he could write like an educated man, अगर वो एक बार पढ़े लिखे आदमी की तरह, एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखना स्टार्ट कर देगा, देन देयर वुड बी नो लिमिट वट आई कुड अचीव, कि वो कुछ भी गेन कर सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, अब उसके लिए भी, अनिल के लिए भी सब कुछ प्लेजेंट वर्किंग, गुड वर्किंग चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। पहले तो क्या करता, मैं मॉर्निंग में टी बनाता अनिल के लिए, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। डेज में घर के लिए जो भी सप्लाई चाहिए होती वो सामान लेकर आता। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और यूजुअली मैं क्या करता, हरी सिंह बता रहा है दैट ही वॉज टेलिंग द स्टोरी, सो ही इज टेलिंग अस दैट ही यूजुअली मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। एक दिन में ₹1 का वो प्रॉफिट कमा लेता। I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. और मुझे लगता था that हरी सिंह को लगता है that अनिल knew the fact that I was making a little money this way, कि मैं इस तरह से पैसे कमाता हूँ, but he didn't seem to mind, पर उसने ज़्यादा इस तरह से behave नहीं किया, that I knew the fact. Okay, this is it for today. We will continue the chapter in next video. Thank you.